Good morning, my dear student. Today we are going to continue your class 12th history, chapter 3rd, topic 2nd, kinship and marriage, many rules and varied practices. My dear student, before we start this chapter, I would like to tell you that what we are going to read in this chapter. In this topic, we will try to understand about the social history of early Indian society, in early Indian history. My dear, as you know that last chapter 2nd, Kings, Farmers and Town, where we studied about the political and economic condition of the early India. I mean to say that during 6th century BC to 6th century AD. In this chapter, we will study the social status, social norms, and other activities which was practiced in early Indian society during 6th century BC to 6th century AD. It is very strange matter that if we want to know about that social structure of early India, we have to base only the literal evidence as far as the matter of inscriptions, as far as the matter of rock edicts. It was not able to explain about the social structure, social practices of the early Indian society. So that's why in the starting of this chapter we studied about the importance of Mahabharata, and also we discussed that why Mahabharata is called the dynamic text. These all points was discussed by me in your previous video, but one more thing which I want to discuss with you, which is very important, कि ये what is the meaning, if you will understand about that, the what is the meaning of kinship, caste and class, which is chapter topic, chapter title. Kinship, it means बंधुत्व, caste it means जाति, और class it means वर्ग. I hope on the basis of this word you can easily understand that we are going to read about the early society, kinship and the relation of marriage, kinship and gradually it changed in the different form. That is very important. If you will read your topic, finding out about families, if you will try to understand about that the origin of family structure, then you have to come down. I mean to say that you have to, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, अर्ली सोसाइटी, अर्ली सोशल हिस्ट्री को ढूंढना पड़ेगा. Finding out about families, we often take family life for granted. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in the terms of number of members, their relationship with one another, as well as the kind of activities they share. Often, people belonging to the same family share food and other resources and live, work, and perform the rituals together. Families are usually part of large network of people defined
as relatives, or to use a more technical term, kinfolk, while family ties are often regarded as a natural and based on blood. They are defined in many different ways. For instance, some societies regarded cousins as being blood relation, whereas others do not. My dear, author want to inform you about the family structure and their development. According to this paragraph, it is very clear that the family that was connected with the blood, and after some time we had seen that that the occupation also. What I want to tell you, my dear, try to understand कि अगर परिवार के बारे में जानने के लिए आपको इतिहास में देखना पड़े तो सबसे पहले हमें पारिवारिक जीवन के महत्व को समझना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन की जो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सहज ही हम उसे स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु आपने देखा होगा कि जो सभी फैमिली हैं वो एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों का अलग अलग व्यवहार, उनके अलग अलग कर्तव्य, उनके अलग अलग कार्य, उनकी अपनी अलग अलग जो नॉर्मल लाइफ में वो परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स, इन चीज़ों में पारिवारिक आधार पर समानता हमें दिखाई देती है। आई मीन टू से दैट कि परिवार के लोगों की गिनती एक दूसरे से उनका रिलेशन और उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनके क्रियाकलाप हैं, से भी हम समझ सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम रिलेटिव्स या संबंधी कह सकते हैं या कहते भी हैं। तकनीकी रूप से टेक्निकल आधार पर अगर हम समझना चाहें और टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो परिवार को हम संबंधियों को, पारिवारिक जो लोग ऐसे हैं जो एक ब्लड से संबंधित थे, हम संबंधियों को एक जातु समूह कह सकते हैं। What I want to tell you, my dear, कि if we want to define the people, network, relatives, the technical term kinfolk is the best to explain it. kinfolk, जो kinfolk है ये उसको अच्छे से समझा सकता है। kinfolk जाति समूह, ये पारिवारिक रिश्ते किस आधार पे है? ये नैसर्गिक है, रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाज में भाई बहन, चचेरे, मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं माना जाता। सपोज इट इज़ वेरी जनरल प्रैक्टिस, इफ यू विल ऑब्जर्व surrounding you, then you will find that in the Hindu religion or in the Vedic religion, everyone follow that rules, everyone agree that कि वो मैटरनल ब्रदर, मैटरनल सिस्टर। लेकिन
जस्ट अपोजिट हम इस्लामिक जो फैमिलीज़ हैं उसमें हम ऐसा नहीं देखते। तो ये वही कह रहा है कि कुछ समाज में आज भी परिवार के सदस्यों को, चचेरे ममेरे मौसेरे भाई को भाई बहन के रूप में माना जाता है, उनका रिश्ता उसी से संबंध किया जाता है। लेकिन कुछ समाज में ऐसा नहीं है। कहते हैं फॉर अर्ली सोसाइटी हिस्टोरियन कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट elite families fairly easily. It is, however, far more difficult to reconstruct the familial relationship of ordinary people. Historians also investigate and analyze attitudes toward family and kinship. These are important because they provide an insight into people thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their action, just as actions may have led to change in the attitudes. I mean to say that कि यहाँ सीधे सीधे कह रहा है कि जो प्रारंभिक समाज था, आरंभिक समाज था, शुरुआती दशक में जो समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। जैसे हमें प्राचीन काल के उन परिवारों की सूचना तो मिलती है जो रॉयल फैमिली से संबंधित थी, लेकिन सामान्य परिवारों की सूचनाएं क्या हमें मिलती हैं, जहाँ पे हमें लिटरल एविडेंस भी प्रॉपरली ठीक से नहीं मिलती। दैट्स वाई ऑथर क्लियरली एक्सप्लेन विथ यू कि फॉर अर्ली सोसाइटी historian can retrieve information about elite family fairly easily. It is, however, far more difficult to reconstruct the familial relationship of the ordinary people. सामान्य परिवारों के बीच के पारिवारिक संबंधों को समझने में इतिहासकारों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं थे जिससे हम सामान्य परिवारों के जो क्रियाकलाप थे उसे समझ सकें। इसके बावजूद हमें जो बड़े परिवार थे, एलिट क्लास के लोग थे, उनकी पारिवारिक इतिहास हमें मिल जाती है। इतिहासकार परिवार और किनशिप बंधुता संबंधी विचारों को भी एनालिटिकल वे से समझने का प्रयास करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा और इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। माय डियर, वाई हिस्टोरियन फोकस्ड ऑन दैट टॉपिक कि हमें उन समाज के बारे में भी जानना चाहिए जिनके बारे में लिखा नहीं गया, जो कॉमन सोसाइटी थी। द स्कूल ऑफ हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री, उपाश्रयी विचारधारा के इतिहासकार का ऐसा मानना है कि इतिहास कुछ चंद लोगों की कहानियों को समेटने का प्रयास किया गया है। इतिहास कुछ चंद लोगों के कुछ लिमिट जो पर्सनालिटीज़ हैं उन्हीं के बारे में बताने का एक विषय बन के रह गया है। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों की बातें नहीं की गई। उपाश्रित विचारधारा के लोग, सबल्टन हिस्टोरियन, इस विचार पर मत देते हैं कि हमें समाज के हर एक वर्ग का विशेष ध्यान देना होगा। इसीलिए इतिहासकार अब नए नए रिसर्चों के आधार पे सामान्य परिवारों के बारे में भी जानने का प्रयास करना शुरू कर दी। इसीलिए इस टॉपिक, इस पैराग्राफ में बात कहती है कि इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज वुड हैव सेव्ड their actions just as actions may have led to change in attitudes. कि जो सामान्य परिवारों के क्रियाकलाप थे उनको बदलना, उनको समझना। यहाँ एक टर्म दिया हुआ है ऊपर, अगर आप देखें, टर्म्स ऑफ फैमिली एंड किंग। व्हाट इज द टर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ फैमिली एंड किंग? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि द kin, it
The Sanskrit text used the term kul to designate families and jati for the larger network of kinfolk. The term once is used for the lineage. कहता है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का प्रयोग बंधु बांधवों के लिए, ये बड़े समूह के लिए किया है। कुल छोटे परिवार के लिए यूज हुआ है और किन जो शब्द है जाति बांधवों के लिए किया है, बंधु बांधवों के लिए किया है। और पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। When we will read about the topic Varna and Jati, where we discuss this topic, but here in short you can easily understand that the kul, it means a designate family, jati, it designate larger network of kinfolk, and once used for lineage. This sentence. And other, which is very important, the meaning of paterlineal and materlineal. Paterlineal means the tracing descent from father to son, grandson, and so on. Same materlineal is the term used when descent is traced through the mother. पैटरलिनी का मतलब है कि वंश परंपरा जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र पे चलती रहे। मतलब एक सिस्टमैटिक वे से फादर, फिर उसके सन, फिर उसके सन, फिर उसके सन, फिर उसके सन के आधार पर चले। सक्सेसरशिप परिवार में पुत्रों को प्राप्त हो पिता से, तो ये व्यवस्था पैटरलिनी व्यवस्था है। प्रतसत्तात्मक परिवार, प्रतसत्तात्मकता के आधार पर पैटरलिनी को, ठीक ऐसे मैटरलिनी शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जहाँ पे वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। जो डिसेंट होता है, जो सक्सेसर होता है, वो माँ से जुड़ा होता है। दैट इज मैटरलिनी। हियर आई वांट टू टेल यू दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, इट वाज बेस्ड, द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन मैटरलिनी। But Vedic and later Vedic and after that family, it was based on the paterlineal system. मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन मातृसत्तात्मक परिवारों के आधार पर थी, जबकि मैटरलिनी व्यवस्था में, सिंधु घाटी सभ्यता में मैटरलिनी को डिफाइन करने के लिए हमें बहुत सारी बहुसंख्यक मूर्तियों को आधार बना के इतिहासकारों ने इस बात को पुष्टि की कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मैटरलिनी था। लेकिन बाद का समाज, वैदिक काल, वैदिक काल, ये पैटरलिनी था। और इसी पैटरलिनी के अप्रोच में इस पूरे टॉपिक को हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 2.2, तो 2.2 को आप समझने में आपको आसानी होगी। द आइडियल ऑफ पैटरलिनी, वंशिक व्यवस्था के आदर्श। द आइडियल ऑफ पैटरलिनी, प्रतसत्तात्मक व्यवस्था का आदर्श। इसको समझने के लिए हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पैटरलिनी को आप समझिए। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटरलिनी एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन द अर्ली इंडियन सोसाइटी, especially in the royal family. Can we identify the points when kinship relation, can we identify, I mean to say that, can we identify points when kinship relation changed? At one level, the Mahabharata is a story about this. It describes a feud over land and power between two groups of cousins, the Kaurav and the Pandav, who belong to single ruling family, that of the
Kuru, a lineage dominating one of the Janpad. Ultimately, the conflict ended in a battle in which the Pandav emerged the victorious. After that, the patrilineal succession was proclaimed. While patrilineage had existed prior to the composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. Under patrilineage, son could claim the resources, including the throne in the case of king, of their father when the latter died. That is very important thing. Again, I am going to read this line. Son could claim the resources, including the throne in the case of king of their father when the latter died. सीधे सीधे कहता है, ऑथर आपको बताने का प्रयास करता है कि किस तरीके से पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था के आदर्श प्रारंभिक समाज में स्थापित थे। तो यहाँ पे ऑथर आपको ये बताने का प्रयास करता है कि जो सोसाइटी थी, स्पेशली जो एलिट क्लास के लोग थे, प्रॉस्परस पीपुल्स थे, उनका परिवार प्रजासत्तात्मक व्यवस्था के आधार पे ही चलता था। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि इस पूरी व्यवस्था में एक जनपद कुरु जनपद का उल्लेख करता है और कुरु जनपद में एक परिवार, एक ऐसे परिवार की बात करता है जो शासक वर्ग से संबंधित था। जैसे अगर स्टार्टिंग में देखें तो कहता है कि कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशन चेंज्ड, क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। कहता है कि जो किनशिप है, किनशिप में कोई बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अगर हम ध्यान से पैटर्लिनी सिस्टम को समझें तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किनशिप में कोई बड़ा विवाद हुआ हो? ऑफ कोर्स। तो कहता है कि एट वन लेवल महाभारत इज ए स्टोरी अबाउट दिस। तो अगर इसको समझना है तो महाभारत को समझना पड़ेगा। महाभारत की कहानी एक स्तर पर इस बात की पुष्टि करती है। महाभारत में एक ही परिवार के जो बंधु बांधव थे उनके बीच एक युद्ध हुआ। परिवार में दो दल, कौरव और पांडव, और कौरव और पांडव के पुत्र आपस में एक युद्ध किए। इस युद्ध की कहानी महाभारत में है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। कुरु एक जनपद था जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर में जब हम महाजनपद कर रहे थे और 16 महाजनपद की बात हमने की तो हमने कुरु महाजनपद के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब कुरु के ही ये लोग थे। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। इनके उपरांत पिता पृथुवंशी उत्तराधिकार को उद्घाटित किया गया। हालांकि जो पैटर्लिनी सिस्टम थी, पैटर्लिनी महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि जब महाभारत लिखा गया तभी पैटर्लिनी पे विशेष बल दिया गया हो। नहीं, इसके पूर्व भी पैटर्लिनी सिस्टम पे माना गया है, क्योंकि ऋग्वेद में इस बात की पूजा की गई, उपासना की गई। सोर्स 1 को अगर आप देखें इस बुक में तो सोर्स 1 में क्लियर इस बात का उल्लेख है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि
जो पैटरलिनी सिस्टम है, इसकी व्याख्या इसकी सिर्फ महाभारत की रचना में हमें दिखाई देती है या महाभारत के बाद दिखाई देती हो। महाभारत के पहले भी ये मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु जो मेन महाभारत की स्टोरी है में इस आदर्श को और सुदृढ़ किया, इस बात पे और ज़्यादा बल दिया कि व्हाट कहता है कि द पैटरलिनी सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड while Paterlini had existed prior to the composition of the epic. The central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable under the Paterlini son could. Here author want to clarify you that the Paterlini system is not started when the Mahabharata was wrote. This system was also practiced in society. Their evidence, literal evidence, which we have, which we can easily found in the Rig Vedas. If you will read source first, where clearly explained, I will tell you, but let me complete this paragraph. The Mahabharata. यहाँ पे पांडव विजयी हुए और पांडवों को प्रतिवंशी अधिकार के आधार पे राज्य मिला। महाभारत की जो मेन स्टोरी है उसने पैटरलिनी को और अधिक मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया। पैटरलिनी में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजा है तो सिंहासन पर भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बहुत क्लियर है। कहता है कि son could claim the resource including the throne in the case of the king of their fathers when they later died. पिता की मृत्यु के बाद अगर वो राज परिवार से है तो पुत्र राज्य पर भी अपना अधिकार का दावा कर सकता है, करता है। Most ruling dynasties 6th century BC onwards claim to follow this system, although there were the variation in practices. Sometimes there were no sons. Sometimes there were no sons. In some situations, brothers succeeded one another. Sometimes other kinsmen claimed the throne, and in the very exceptional circumstances, women such as Prabhavati Gupta exercised power. My dear, this is the very interesting. कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th century BC के समय से लगभग सभी राजवंश इस पैटरलिनी सिस्टम का अनुसरण कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे। हालांकि इस व्यवस्था में पैटरलिनी सिस्टम में थोड़े बहुत हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, थोड़े बहुत चेंज के साथ हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमने एक मैप आपके सामने रखा है। यहाँ पे आप कुरु और पांचाल रीजन को देख सकते हैं, और चूंकि हम महाभारत पे बात कर रहे हैं तो कुरु महाजनपद को आप मैप में देखिए, कहाँ है कुरु महाजनपद, और फिर कुरु और इंद्रप्रस्थ देखिए ऊपर दिया हुआ है। अगर आप उन चीज़ों को देखें तो आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो what I tell you that during 6th century BC onwards, the every dynasties follow the Patterlini system. Even we had seen that within the system some changes also occurred, हुआ। कुछ बदलाव के साथ हमें ये व्यवस्था दिखाई देती है। जैसे क्या बदलाव था, अगर आप उस बदलाव को देखें तो इस प्रथा में कुछ विभिन्नता हमको मिल जाएगी। जैसे कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे की उत्तराधिकारी हो जाता था। राजा का कोई पुत्र नहीं हुआ तो राजा का भाई राज्य का राजा बनने का उत्तराधिकारी हो जाता था। ठीक उसी तरीके से कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्ता की बात हम लोग की थी जब हम लैंड ग्रांट सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने प्रभावती गुप्ता के बारे में, तो कहता है कुछ विशेष परिस्थितियों में लड़कियों ने भी राज्य का उपभोग किया है, राज्य की शासिका बनी है। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने पहला पॉइंट कहा कि यदि राजा का कोई पुत्र न हो या राजा
फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो ऐसी परिस्थितियों में राजा का भाई राजा बनता था। जैसे महाभारत में देखें तो धृतराष्ट्र की स्टोरी को देखें। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, जन्मांध थे, ब्लाइंड थे। तो ऐसी स्थिति में उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया। यही मेन विवाद का जड़ था। अब दोनों के बीच दोनों के पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहे गए, और पांडु के 5 पुत्र हुए जिन्हें पांडव कहा गया। युधिष्ठिर पांडव के बड़े पुत्र थे और उम्र में धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन से बड़े थे। तो ऐसी स्थिति में वो अपने को युवराज कह रहे थे, जबकि पैटर्नरी सिस्टम के अकॉर्डिंग राजा का पुत्र ही राजा होता है, राजा का बड़ा पुत्र ही राजा होता है। और जैसा कि एक लाइन आपके बुक में है, मैं एक बार फिर से उसको आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सेम इसी आधार पे कि सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग ऑफ द फादर व्हेन द लेटर डाइड, कि राजा का पुत्र राजा बनेगा। और यदि इस नियम को, मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर देखें तो धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन था और दुर्योधन कहता था कि मैं युवराज हूँ, अर्थात मैं पिता की मृत्यु के बाद राजा बनूंगा। लेकिन चूंकि पांडव भी राजा बने थे, तो पांडु के राजा बनने के कारण उम्र में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, इसलिए युधिष्ठिर को युवराज की पदवी मिलनी चाहिए, राज्य युधिष्ठिर का होना चाहिए। यही बात महाभारत के युद्ध का मेन कारण था और इसी बात का उल्लेख कर रहा है। कुछ परिस्थितियों में हमें दिखाई देता है कि महिलाओं ने भी शासन प्राप्त किया है, प्रभावती गुप्ता उसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर।